Hello everyone. So I hope that I am audible. Yes, great Neha. Alright. So today's session has been arranged to let you know about the answer writing, the essence of answer writing in the geography optional. And before starting, if you have any question, a specific question, then you can ask. So you can write in the chat. In any optional, there are different components. I'm sure that all of you must be knowing that in UPSC, along with the GS, you are also supposed to study one of the optional, and that optional will be useful in your mains examination. In optional preparation, there are different stages. The very first stage is familiarity with the subject. So in any optional, the very first thing is familiarity with the optional. Familiarity with the optional means simply the conceptual clarity. तो पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, और ये कॉन्सेप्ट कौन से कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए? इट शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद द सब्जेक्ट, रादर इट शुड बी सिलेबस specific. So the very first thing that you are supposed to know is the syllabus completion. The syllabus completion means all the chapters of syllabus. अब ज्योग्राफी की बात करें तो इन ज्योग्राफी we have the two paper, that is paper 1 and paper 2. Paper 1, paper 2. In paper 1 we have 10 chapters, paper 2 we have the 10 chapters. There are 20 chapters. Paper 1 is simply referred as the principles of geography, paper 2 is simply referred as the geography of India. So syllabus, detailed syllabus ka we already have covered a series of lectures where we have explained the different topic of the syllabus, what should be the way out, what should be the elaborated part of the syllabus. तो हम लोगों ने बात डिस्कशन किया है. तो if you have not gone through that lectures, it is suggestive to go through with that lectures. तो syllabus का एक बेहतर आइडिया मिल जाएगा आपको कि कौन से टॉपिक की क्या रिलेवेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है, and also how it is associated with the
अदर पार्ट्स ऑफ द सिलेबस, हाउ टू डू द इंटरलिंकिंग, क्या टॉपिक्स आपको कवर करना है, कैसे कवर करना है, वो डिस्कस किया गया. नाउ once you will cover this paper 1, paper 2 chapter, that is 10 chapter of paper 1, 10 chapter of paper 2, then you will have the conceptual clarity, that is the syllabus completion. The second step is answer writing. So first is conceptual clarity, second is answer writing. Now of course these are the two different steps. Lots of student thinks, lots of student consider it as a two separate thing. तो स्टूडेंट का जो ओरिएंटेशन होता है, इन बिटवीन अगर आपको कोई भी डाउट रहे, कोई भी क्वेश्चन रहे, डेफिनेटली यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स. तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट अगर आपको पूछना हो, आई विल डेफिनेटली आंसर. सो जनरली व्हेन द स्टूडेंट डू द आंसर राइटिंग, स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि सिलेबस कंप्लीशन इज ए डिफरेंट, आंसर राइटिंग इज ए डिफरेंट. तो पहले हम लोग सिलेबस कंप्लीशन करते हैं और फिर हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे. सिलेबस कंप्लीशन पहले, आंसर राइटिंग बाद में. बट दिस इज नॉट द राइट अप्रोच, बिकॉज even if you will talk to the candidates who got selected, of course in not publicly, privately, then you will get to know that some of the areas, some of the topic, they were also not very much comfortable, or might be they have not covered all together. तो ये अगर आपके दिमाग में हो, ये माइंड में हो कि आपको पूरा का पूरा 20 चैप्टर पहले कंप्लीट कर लेना है, line to line, topic to topic, and then we'll start the answer writing. So that is not the right approach, and in this definitely there will be some problems, obstacles. So there will be great obstacles, and that plan is bound to fail. Sorry to say, but that is bound to fail. So if you will separate these two things, that first we will cover this, then we will cover this, so that is going to fail. That is why whenever you are going through with the syllabus, be it your through the classes or by yourself, तो अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप किसी क्लास के थ्रू प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आंसर राइटिंग शुड मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द प्रिपरेशन इटसेल्फ. तो ये जो ऑप्शनल में आंसर राइटिंग है, ऑप्शनल की आंसर राइटिंग शुड नॉट वेट फॉर द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस. तो हम लोग उस अप्रोच में नहीं जाएंगे कि नहीं पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे. आंसर राइटिंग मस्ट बी इंट्रोड्यूस इन द इनिशियल फेज इटसेल्फ. बट यस, आंसर राइटिंग विल हैव अ डिफरेंट फेजेज. अब ये आंसर राइटिंग अलग अलग फेजेज में होगी. तो पहली चीज, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट you should remember is answer writing should start right from the time when you have started optional preparation. So here focus on these two words, that is optional preparation. Optional preparation means आप किसी भी तरीके से, दो तरीके से, either self or through the foundation. तो अगर आपने कोई फाउंडेशन का प्रोग्राम ज्वाइन किया हो और या सेल्फ कर रहे हैं, तो दोनों ही लेवल पे अभी आपकी ऑप्शनल की प्रिपरेशन शुरू हो जानी, आप उसी को कंसीडर करेंगे ऑप्शनल की प्रिपरेशन. ऐसे नहीं कि आप यू आर हैविंग अ ज्योग्राफी ऑप्शनल, सो दैट इज योर ऑप्शनल प्रिपरेशन. नो, व्हेन यू हैव स्टार्टेड रीडिंग, व्हेन यू हैव गॉन फॉर द you have picked up the book, you have picked up the topic, you have gone through the syllabus, and syllabus wise you are picking up the topic and you are reading. ठीक है. Now when you will start the answer writing, तो let's say पहली चीज आपको पता चल गई कि आंसर राइटिंग आपको करना ही करना है.
अब बात आती कैसे करें, हाउ टू डू द आंसर राइटिंग, हाउ टू राइट द आंसर और हाउ टू डू द आंसर राइटिंग. नाउ माय सजेशन विल बी दैट आंसर राइटिंग शुड बी ब्रोकन in different levels. Level 1, level 2, level 3. In level 1, we focus on how to write an answer. How to write an answer means content plus structure. कंटेंट क्या लिखें, स्ट्रक्चर क्या लिखें, और ये कंटेंट के लिए हमारा सोर्स क्या होगा, वेदर, फिर से वही बात आएगी, सेल्फ prepared notes or any class notes. अगर आपने if you have joined some of the classes, तो अगर आपने फाउंडेशन क्लासेस किया है तो then only use the class notes. Otherwise just always rely on your notes. So self prepared notes की तरफ जाएंगे तो that will be much better. तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि क्लास नोट्स जो लिखाया गया है, जो बताया गया है, that might have some of the hidden meaning, some of the hidden thing, and when you are studying, you are referring to some others class notes, you will not have that kind of understanding in the initial level. When you will spend 2 years, 3 years, 4 years time, then you will develop that. लेकिन आप 3 साल 4 साल समय सब्जेक्ट में अगर आप if you will spend the time, by that time period you won't needed that kind of notes. So that is why it is always suggestive, if you are preparing self, then go for the self made notes. If you have joined the classes, so use the class notes. ठीक है. So initial level में try to approach the question, try to understand the question. अब इसको थोड़ा और इलैबोरेट करते हैं. इफ आई इलैबोरेट लिटिल बिट मोर, तो ये क्या है इसको समझिए आप. लेवल 1, अंडरस्टैंडिंग डिमांड ऑफ क्वेश्चन. अंडरस्टैंडिंग डिमांड ऑफ क्वेश्चन मीन्स what exactly the question is asking. जैसे let's say एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं. You have studied the topic called plate tectonic theory. Now plate tectonic theory you have studied. अब बारी आई लिखने की, आंसर राइटिंग करने की. तो अब अगर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पे डिस्कस द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1. सेकेंड इज plate tectonic theory uses the idea of continental drift theory, sea floor spreading theory, and concept of isostasy. Elucidate. Now we have the two questions. First question is discuss the plate tectonic theory. The second is plate tectonic theories uses the idea of the continental drift theory, sea floor spreading theory, and isostasy. Elucidate.
अब ये दोनों ही क्वेश्चन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पे हैं, बट दोनों क्वेश्चन की जो डिमांड है वो अलग अलग है. सो इनिशियली this is very important because most of the students thought process is what? Thought process understanding the concept हमने समझ लिया, concept पढ़ लिया, अब कोई भी आंसर हो लिखेंगे. प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्वेश्चन में दिखा नहीं कि जस्ट वी नीड टू राइट द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. तो इनिशियल लेवल में योर फोकस शुड बी ऑन दैट पार्ट, that are you able to fulfill the demand of the question or not. Understanding the question is very important because if you will understand the question, might be your content is not 100% up to the mark, but still the examiner will reward you. Or this is one of the very important thing that you need to understand, that even after spending 2 years 3 years time, a student don't write according to the demand of the question, rather student always try to write according to their own understanding. They write according to their own understanding, but they expect that examiner should reward on that content, because they always think कि ये क्वेश्चन है, इसमें मैंने लिखा तो है कॉन्टिनेंटल प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. अब अगर मैंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी लिखा तो ये एग्जामिनर की जिम्मेदारी है कोई आंसर वो नंबर दे, राइट. सो इनिशियली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द डायरेक्टिव वर्ड्स. डायरेक्टिव वर्ड्स क्या है, डायरेक्टिव वर्ड्स को कैसे टैकल करना है. फिर इसी यहीं पे व्हेन यू हैव ट्राई टू लर्न दैट, तो इसी में मैंने कहा था कि दोनों चीजें, अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ क्वेश्चन एंड स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर क्या है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन. Am I able to write the introduction? And always remember, whenever you are writing the answer, you are not supposed to put up the heading. तो ऐसे कोई heading नहीं लिखी जाएगी कि ये introduction है, ये body है, conclusion है. Heading नहीं लिखना. You are just supposed to write the one paragraph, that will be introduction, then body. The general flow will be this. तो ऐसा नहीं पहले body लिख देंगे फिर introduction. Introduction will be in the starting, conclusion will be in the end. Body is the main question that is being asked. तो ये जो हमारा प्रिपरेशन का राइट अप्रोच होना चाहिए, द राइट अप्रोच इज कि हम लोग कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट की पढ़ाई और आंसर राइटिंग दोनों साथ में करेंगे. लेकिन साथ में आंसर राइटिंग करने का ये मतलब नहीं कि हम लोग वी विल स्टार्ट डूइंग द आंसर राइटिंग दैट वी आर सपोज टू डू इन द मेंस एग्जामिनेशन. आई यूज्ड टू गिव दिस एग्जांपल सेवरल टाइम. जैसे आप ग्रेजुएशन आप लोगों ने किया होगा. सो जो भी आप ग्रेजुएशन में हो, जिस भी स्ट्रीम से आते हो, लेट्स यू आर कमिंग फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और द लॉ बैकग्राउंड और द मेडिकल बैकग्राउंड, तो मूवीज़ को छोड़ दिया जाए तो अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं और अगर आप MBBS कर रहे हैं तो पहले सेमेस्टर में ही तो जाके आपको सर्जरी नहीं सिखाई जाएगी. तो व्हेन यू आर नॉट डूइंग द सर्जरी in the first semester in medical courses, then why you are expecting that in the first class or in the first month, first initial time period itself you should be having all the ideas. So like how you approach your academics, very similarly you also need to approach your optional. So that is the right approach. Initially you should not go for the perfection, rather try to understand this basic nitties and gritties. Are you able to understand the demand of the question? Content क्या होगा, that can be tackled. ठीक है, अगर हमें पता चल गया कि हम क्वेश्चन में ये पूछा गया अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है, कोई दूसरी किताब उठा लेंगे, कोई दूसरा मटेरियल उठा लेंगे, सर से पूछ लेंगे. सो अल्टीमेटली यू विल हैव मल्टीपल sources to understand the content, but there will be very few sources where you can understand the demand of the question. So जब भी आप गाइडेड आंसर राइटिंग करते हैं तो गाइडेड आंसर राइटिंग में दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, you learn how to actually interpret the question, and once you have interpret the question, half of your job done. That is why I used to suggest to all my students that
प्लीज स्पेंड सम टाइम इन रीडिंग द क्वेश्चन। जल्दी में क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि नहीं हमें तो 7.5 मिनट में एक 10 मार्कर लिखना है, तो 5 सेकंड में 7 सेकंड में बस क्वेश्चन पढ़े और लिखना शुरू कर दें। नो, spend some time. The time that you will spend in reading the question is not going to be waste. So initially हम लोग level 1 में क्या करेंगे, how to write an answer, और ये जो आंसर करेंगे यहाँ पे हम लोग ये सीखेंगे कि कंटेंट को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाए। स्ट्रक्चरिंग पे ज़्यादा फोकस रहेगा, इंट्रोडक्शन में क्या लिखें, बॉडी में क्या लिखें, कंक्लूजन में क्या लिखें। अब ये हो गई बात एक एक क्वेश्चन से। तो ये जो लेवल 1 हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज एसोसिएटेड विद द 1-1 क्वेश्चन, और ये बेसिकली इट विल बी बेटर सूटेड अलॉन्ग विद द फाउंडेशन क्लासेस। जैसे आप फाउंडेशन क्लास कर रहे हैं, तो फाउंडेशन क्लास में आज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ाया गया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया, जहाँ पे आप समझ पाएंगे कि अच्छा ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, ये पैलियोमैग्नेटिज्म है। आज हमने पैलियोमैग्नेटिज्म पढ़ा, तो पैलियोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाए। आज हमने बिहेवियरलिज्म पढ़ा, व्हाट इज दिस बिहेवियरलिज्म, व्हाट इज दिस एरियल डिफरेंशिएशन। आज हमने एरियल डिफरेंशिएशन पढ़ा, तो इस पे किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएं। वेबर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल हमने पढ़ा, वॉन थ्यूनेंस एग्रीकल्चर लोकेशन मॉडल हमने पढ़ा। तो अब ये एग्रीकल्चर मॉडल जो हमने पढ़ा है, एग्रीकल्चर मॉडल ऑफ वॉन थ्यूनेन, इससे अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया तो डायरेक्टली हम किस तरीके से टैकल करेंगे। तो इन द लेवल 1 you will just try to understand the demand of the question, you will try to understand the structure. In the structure, mainly introduction part, body part, conclusion part. Introduction में क्या लिखें, body में क्या लिखें, conclusion में क्या लिखें। Body is actually the main question. So body mainly deals with the actual question that has been asked. तो जो exact question पूछा गया वो आपका body part में आएगा। But how to tackle the introduction, how to tackle the conclusion, that you will learn here. Now coming to the second stage, अब second stage answer writing की जो level 2 है, अब यहाँ पे क्या सीखेंगे आप। तो ये level 1 में था 1 by 1 question, अब यहाँ पे आपका मॉड्यूल में चला जाएगा। मॉड्यूल में कैसे चला जाएगा, here you are supposed to write only one question, या एक क्वेश्चन को आपको ट्रीट करना था। अब यहाँ पे एक यूनिट वाइज, एक चैप्टर वाइज, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी या क्लाइमेटोलॉजी या इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जहां पे आप एक साथ यू विल ट्राई टू आंसर 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, क्योंकि ये इसके ऊपर है स्टेप वाइज। अब आपकी ये अंडरस्टैंडिंग या एक्सपेक्टेशन होगी कि एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, 7 मिनट 8 मिनट का समय दिया जाएगा, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू आंसर। इफ यू विल बी गिवन 1 क्वेश्चन, हो सकता है कुछ स्टूडेंट को टाइम का कंसर्न हो, तो माइट बी यू विल बी गिवन 15 मिनट, यू कैन राइट, बिकॉज इनिशियली वी वर नॉट बॉदर्ड अबाउट द टाइम। तो टाइम के लिए हम लोग बहुत फोकस नहीं है कि आप 8 मिनट में आंसर लिख रहे हैं या 10 मिनट में आंसर लिख रहे हैं। इफ यू आर राइटिंग 10 मार्कर इन 15 मिनट, दैट इज नॉट द मेन कंसर्न। द मेन कंसर्न इज, आर यू अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, डिमांड आपको समझ में आई, आप अपने आंसर में इंट्रोडक्शन कुछ लिख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं, सो आर यू एबल टू राइट द इंट्रोडक्शन और नॉट, आर यू एबल टू राइट द कंक्लूजन, बॉडी पार्ट अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, कंटेंट आपके पास है, कंटेंट का सोर्स क्या है, उस पर आप वर्क करें। दिस इज द मेन फोकस। नाउ कमिंग हियर द वेरी फर्स्ट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। एक क्वेश्चन तो 15 मिनट में आपने लिख लिया, लेकिन अब यहां पे आपको 1 घंटे में 5 क्वेश्चन करने हैं। सो इन 1 hour you are supposed to answer 5 question. In 2 hours you are supposed to answer 12 question, 13 question. So then you need to learn the time management, and whenever you will learn the time management, for that you also need to focus on the word limit. तो टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे, वर्ड लिमिट सीखेंगे,
उसके साथ में प्रेजेंटेशन पे काम करेंगे, एंड ऑन टॉप ऑफ इट रिवीजन। बिकॉज लेट सपोज दैट यू हैव स्टडीड वन टॉपिक, एक टॉपिक आपने पढ़ा, आपने एक टॉपिक पढ़ा और इमीडिएटली लेट सपोज आपने 1 घंटे स्पेंड किया, 2 घंटे स्पेंड किया, you will be asked a question to write. So I am sure that most of you will be able to write some of the content. Even if you have not understood effectively the entire concept, then also you can write something. लेकिन अगर आपको वहीं पे एक टॉपिक, एक क्वेश्चन ना देके आपसे कहा गया now you are supposed to read 30 topics. 30 टॉपिक्स आप पढ़िए। अब इन 30 टॉपिक्स में से you will be asked question on 5 topic. Then your level of revision will be thoroughly checked. क्योंकि एक टॉपिक पढ़ा, एक टॉपिक पे आपने आंसर किया, तो ये तो बड़ा आसान है। लेकिन जहां पे आप 30 टॉपिक पढ़ रहे हैं और उन 30 टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली योर इफेक्टिवनेस ऑफ द रिवीजन will be checked. In fact, here comes also one of the weak point. तो यहां पे आपका अगर कोई वीक पॉइंट है तो वो भी एक्सपोज्ड हो जाएगा। जैसे आप जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, अब जियोमॉर्फोलॉजी में हो सकता है कुछ ऐसे एरियाज हों जो आपने ठीक से नहीं पढ़ा हो। क्लाइमेटोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी में कुछ आपके वीक एरियाज हो सकते हैं कि जहां पे आपने ठीक से पढ़ाई नहीं किया हो। तो जो आपके क्लाइमेटोलॉजी के वीक एरियाज हैं, जियोमॉर्फोलॉजी के वीक एरियाज हैं, पर्सपेक्टिव्स इन ज्योग्राफी के वीक एरियाज हैं, मॉडल्स के वीक एरियाज हैं, सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल गेट एक्सपोज्ड। एंड व्हेन एवरीथिंग इज गेटिंग एक्सपोज्ड, सो डेफिनेटली यू विल स्टार्ट गेटिंग पैनिक्ड। तो आप पैनिक ना करें, और आपकी हेल्प के लिए वी हैव स्टार्टेड द प्रोग्राम। तो जो हमारा प्रोग्राम है दैट इज द GMAP, Geography Means Assistant Program, which we also refer as a Q&A. In that Q&A is a extension of the conventional test series. तो ये conventional test series से extension है, और यहाँ पे हम लोग what my objective is that first of all give you that ecosystem of level 2. तो आपको एक level 2 का ecosystem दिया जाएगा, एक conditions दिया जाएगा कि जहाँ पे आप यूनिट वाइज टेस्ट लिखें। लेकिन ये यूनिट वाइज जो टेस्ट लिखेंगे या जो यूनिट वाइज आप अपना रिवीजन करेंगे, उस यूनिट का कुछ रिवीजन, कुछ कॉन्सेप्ट क्लासेस भी दिया जाएगा। सो आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस के थ्रू ऑलमोस्ट एंटायर चैप्टर विल गेट रिवाइज्ड। और अगर पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया तो कहीं पे भी अगर आपके जो भी आपका सेल्फ मेड नोट्स है या जो भी क्लास नोट्स है, उसके बीच में अगर कहीं पे भी कोई गैप है तो दैट गैप विल गेट फिल्ड। So that gap will get filled. So this is the main objective of that program. Anyway, अब ये presentation क्या है ये भी देखें। So structuring means introduction, body, conclusion. But when it comes to the presentation, what this presentation refers to? Presentation means the general flow. General flow means, let's suppose there is a starting point A, then there is a B, C, there is a D. Let's suppose someone wants to go from A to D. तो अगर A से D जाना है तो जो राइट या जो एक्सपेक्टेड होगा, जो कन्वेंशनल वे आउट है इस एग्जाम्पल में, is first move A to B, B to C, C to D, and this will be considered as the general flow. But consider करिए कि someone is writing the answer और उसका अप्रोच क्या हो रहा है, first they are going B to C, then C to A and then A to D. तो आप जो फ्लो है आपको A से स्टार्ट करना था, बट आपने स्टार्ट किया B से, और B से पहले आप C पे पहुंच गए।
सी से आप ए पे पहुंच गए, ए से डी पे पहुंच गए, और बाद में आप ये कह सकते हैं कि नहीं, लुक वी ऑलरेडी हैव कवर्ड ऑल द 4 नोड्स, सो वी आर सपोज टू गो फ्रॉम ए टू डी बाय कवरिंग ऑल द 4 नोड्स, सो ऑल द 4 नोड्स इज बीइंग कवर्ड। ये उसी तरीके से आपके आंसर में 4 पॉइंट होने चाहिए थे। सो 4 पॉइंट्स वर सपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, इंक्लूडेड इन योर आंसर, but those 4 points or those 4 paragraphs should be in a flow. The paragraph that was supposed to be written in the first, you have written in the last. The paragraph that was supposed to be written in the third, you have written in the second, last, third, second, third, the fourth. So that zigzag will not convey a proper message. So this is the flow that I am referring. Means by reading your answer, because one thing that you should not forget, that you yourself is not having the chance to go and present your case with the examiner. To the examiner, your copies are only way out to speak, and copies will only speak when there is a coherence, there is a proper flow. If that flow will break, definitely there will be a problem. तो जो आपकी कॉपी का फ्लो होना चाहिए, कंटेंट का फ्लो होना चाहिए, that is also very important to understand. Flow should not be broken, and this is what you need to learn in the presentation. So the first part is general flow. In fact, presentation includes a lot of other things like your general handwriting. Any student, I don't think that at this stage you will be able to change your handwriting. तो हैंडराइटिंग तो आप नहीं चेंज कर सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी लेजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। जो आपका लिखने का तरीका है उसे थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, वर्ड्स के बीच में गैप कर सकते हैं, लाइंस के बीच में गैप कर सकते हैं, छोटे पैराग्राफ लिख सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट कैन बी डन एट दिस स्टेज, नॉट द जनरल चेंज इन द राइटिंग। देन अदर थिंग्स लाइक इंक्लूजन ऑफ डायग्राम, डायग्राम कैसे बनाने हैं, मैप्स कहाँ पे इंक्लूड करने हैं, वर्ल्ड मैप का कितना यूटिलिटी है, इंडिया मैप की कितनी यूटिलिटी है। लाइक जब आप पेपर 1 लिखेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी कर रहे हैं, तो फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी में देयर विल बी मोर यूटिलिटी ऑफ यूजिंग द डायग्राम्स, तो डायग्राम की यूटिलिटी ज़्यादा होगी। वहीं पे अगर आप लेट सपोज दैट यू आर राइटिंग इन द सेकेंड पेपर इंडिया ज्योग्राफी में, तो वहाँ पे मैप्स की यूटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। इंडिया मैप में भी कोशिश करें कि आप सेक्शनल मैप ड्रॉ करेंगे, आप पूरा का पूरा इंडिया मैप नहीं ड्रॉ करेंगे। सो दीज आर द थिंग्स। देन फ्लो चार्ट, देन वी हैव द केस स्टडीज। So how to include the case study, how to incorporate the examples, because these are the things, because the basic when you have learned, let's say जो पहला हमारा लेवल था, आपने पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लिया और आपने एक जनरल अंडरस्टैंडिंग से आंसर राइटिंग कर ली, जहाँ पे आप you are able to understand that what is the demand of the question, I am able to write the demand, I am able to write the introduction, बॉडी कंक्लूजन। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी लेट्स से 230, तो योर लेवल हैज रीच टू दैट वेयर यू कैन गेट द 230 मार्क्स इन द मेंस एग्जामिनेशन। तो अगर आप लेवल 1 पे हैं तो मींस 230 तक आप पहुंच सकते हो, अभी मैक्स है। 230 से जो आपका 270 280 तक जाना है, वो आपको लेके आएगा द लेवल 2। लेवल 2 मीन्स पूरी की पूरी यूनिट आप कैसे रिवाइज कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कितना इफेक्टिव है, मैप्स कितना यूज कर रहे हैं, केस स्टडी कितना यूज कर रहे हैं, डायग्राम कितना यूज कर रहे हैं, कितना इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं, आपके आंसर का फ्लो कैसा है। एक आंसर लिख रहे हैं तो फ्लो अच्छा है, लेकिन जब आप एक बार एक साथ में बैठ के 10 आंसर लिख रहे हैं, 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तब आपके सभी क्वेश्चंस का क्या फ्लो उसी तरीके से है। ऐसा तो नहीं कि एक क्वेश्चन का फ्लो अच्छा है बट व्हेन यू आर सपोज टू राइट लॉट ऑफ क्वेश्चन यू आर नॉट एबल टू टैकल इट प्रॉपर्ली। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लेवल 2। तो हमारा लेवल 1 दैट इज एसेंस ऑफ द लेवल 1 हम लोग बात कर ही चुके हैं, एंड लेवल 2 दीज आर द थिंग्स, एंड इन फैक्ट आई ऑलरेडी
elaborated that our this GMAP program, Q&A program will start from this level 2. तो हम लोग लेवल 2 से स्टार्ट करेंगे, बस उसमें एक और एडिशन होगा कि उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस भी दी जाएंगे, केवल हम लोग आंसर राइटिंग पे रिलाई नहीं करेंगे. नाउ कम्स द लेवल 3 इन आंसर राइटिंग. दिस लेवल 3 इज लाइक फुल फ्लेज राइटिंग. फुल फ्लेज राइटिंग व्हाट? इसको देखें. अब जो लेवल 3 की आपकी आंसर राइटिंग होनी चाहिए, दैट शुड बी लाइक 3-4 चैप्टर इन वन गो. तो पहले तो अब आप एक चैप्टर नहीं, अब आप 3 चैप्टर एक साथ करेंगे. जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, बायोज्योग्राफी, लेट्स से एंटायर फिजिकल ज्योग्राफी, एंटायर ह्यूमन ज्योग्राफी. तो अब आपका जो रिवीजन है वो और इंटेंसिवली चेक होगा कि एक चैप्टर के रिवीजन में तो आप बहुत इफेक्टिवली हैं, लेकिन अगर आपने 5 चैप्टर का रिवीजन किया और उस 5 चैप्टर के रिवीजन से आपको 10 क्वेश्चन पूछे गए, तो फिर किस तरीके से आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. ये उसी तरीके से है कि अगर आपको क्रिकेट फॉलो करते हैं तो क्रिकेट में आपने रणजी खेला, तो रणजी में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फिर आपको इंडिया में सिलेक्शन हो गया, तो इंडियन टीम में सिलेक्शन हो गया, तो जब आप डोमेस्टिक मैच खेल रहे हैं तो डोमेस्टिक मैच में कैसा परफॉर्म करेंगे, सॉरी इंडिया में मैच हो रहा तो उसमें कैसा परफॉर्म करेंगे. और वही प्लेयर जिसने इंडिया में बहुत अच्छा खेला है, हैपेंस टू वेरी टैलेंटेड प्लेयर, द मोमेंट दे आर विजिटिंग द ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, तो वहां पे कैसी परफॉर्मेंस है. सो इट इज नॉट अबाउट द कंटेंट. कंटेंट नहीं चेंज हो रहा. इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट जो इनिशियल स्टेज में होते हैं, दे बिकम्स वेरी अर्ली जजमेंटल. उन्होंने एक स्टूडेंट का देखा मेंस का मार्क्स उसके 270 आए, एक स्टूडेंट का देखा उसके 220 आए, इमीडिएटली दे हैव पास द जजमेंट कि हाँ 220 वाले को ज्योग्राफी आती ही नहीं. 220 230 आपकी मार्क्स है, मतलब उसको ज्योग्राफी उतनी ही आती जितने 270 वाले को आती है. बट द थिंग इज दे हैव मिस्ड दैट पार्ट. वो पार्ट नहीं उन्होंने टैकल किया. एंड दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. इसे अगर आप ये सोचेंगे नहीं आज हम कर लेंगे और नेक्स्ट ईयर मेंस लिखने जाना रहेगा तो बस अब नहीं करना. दिस शुड बी almost continuously being done for the next 14-15 months. That is why I have given the program the name as a Geography Mains Assistance Program. कि प्रोग्राम इस तरीके से डिजाइन है कि आपको नेक्स्ट मेंस तक, 2026 के मेंस तक वो शेड्यूल इस तरीके से दिया जाएगा कि एवरीथिंग शुड बी इन, यू शुड बी इन टच विद द सब्जेक्ट एंड एवरीथिंग शुड बी इन टच. तो आप उसी तरीके से टच में रहें. तो यहाँ पे 3 से 4 चैप्टर एक बार में टैकल किए जाएंगे. और यहाँ पे जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा, टेस्ट का पैटर्न होना चाहिए, दैट शुड बी यूपीएससी पैटर्न. यूपीएससी का क्या पैटर्न है? अराउंड 19 क्वेश्चन यू आर सपोज टू राइट इन वन गो, दैट इज इन 3 आवर्स. तो 3 घंटे के क्वेश्चन पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे. और इन 3 घंटे के क्वेश्चंस में आप देखिए फिर 2 कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे कि जब सेक्शनल कर रहे थे तो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन 3 घंटे में आते ही उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई. तो उसको देखना पड़ेगा कि आप रिवीजन थोड़ा और इफेक्टिव करिए. या आप जब 5 क्वेश्चन लिख रहे तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा था, लेकिन जैसे ही आपको 15 क्वेश्चन लिखने पड़ गए, 19 क्वेश्चन लिखने पड़ गए, तो आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा कमज़ोर हो गया. यू आर नॉट एबल टू इंक्लूड डायग्राम्स, डेटा, फैक्ट in every answer. You are not able to write the examples in every answer. So that should be the way out. So these are some of the important aspects of the answer writing, and this is how you need to approach the answer writing. Answer writing को इसी तरीके से approach करें. और the program that I have started, the answer writing, the program entirely focuses on this part. तो आपको बिल्कुल एग्जाम रेडी करने का मेन ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम का. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, कुछ अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, इफ़ यू वांट टू आस्क, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स.
All right. So if your number has also been shared, so for any doubt, any queries, you can connect on the given number for any doubt or any queries. That's all from my side. Thank you.